Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we'll be talking about a few things related to C++. We'll be starting our basic programming, and we'll be discussing the components of C++ program. For example, functions, special symbols, and identifiers in C++. We'll be talking about simple data types. We'll be talking about how to use the different arithmetic and mathematical operators. We'll be examining how a program evaluates different arithmetic expressions. We'll try to become more familiar with the string data type. Then we'll be talking about what an assignment operator is, and what an assignment statement is, and how it works. Similarly, we'll be talking about variable declaration, how it is done, and what it stands for. We'll be discovering how to input data into memory using input statements. So you need to become familiar with input statements. We'll become familiar with the use of increment and decrement operators, two operators that are used to increment or decrement a value by a specific number. We'll be examining ways to output results using output statements. We have already seen cout as an example. We'll be learning how to use preprocessor directives and why they are necessary. We'll be learning how to debug syntax errors. So whenever syntax errors come, how we should debug them. We would try to explore how to properly structure a program, including using comments to document a program. So the good programming habits that I've been talking about a lot over the past few week. And then we'll want to become familiar with compound statements. We'll also want to learn then and see basically a couple of different C++ programs, and we'll learn the syntax here as well. You already know it a bit, but I'll kind of go through it in a formal manner. So what is a computer program? A computer program is nothing but a sequence of statements whose objective is to accomplish a task. You are supposed to solve a problem, and for solving that problem, you've analyzed the problem, and after analyzing the problem, you've came up with an algorithm. A computer program converts that algorithm into a set of instructions, as I want to call it, that the computer can then understand and run, and based on those instructions give us the result. So a computer program is basically meant for the computer, but the logic behind is always hidden inside the algorithm. Programming is the process that actually captures this whole idea of writing a computer program. So in programming, we need to plan and then create a program. It's basically a complete a process, a complete recipe of starting from one point and going till the end. And in the real world, if you're cooking, if you know cooking, of course the recipe is everything. If the recipe is incorrect, the food will never ever taste great. But if the recipe is fine, if the recipe is great, then there is still a chance that your food ends up not well cooked, but that chance is minimized. So programming is like preparing a recipe for cooking. And let's have a quick look at a C++ program that we saw in the last lecture as well. And in this lecture, we saw that this program was used to calculate area and parameter of a rectangle. And I would urge you actually to have a good look at it. बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो डबल लेंथ, ये बेसिकली इससे कुछ जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं. दिस इज एन आउटपुट स्टेटमेंट. ठीक है, नोटिस के इसको आप मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं इन दिस फॉर्मेट. अगर सेमीकोलन से इसको एंड नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये लाइन कंटिन्यू कर रही है.
लेंथ आपने स्पेसिफाई की हुई है, आपने विड्थ को स्पेसिफाई कर लिया, इनिशियलाइज किया यहाँ पे स्टेप में, and then, आप पैरामीटर हो गया, एरिया हो गया, कैलकुलेट करें, उसके बाद उसको आउटपुट कर दें, फाइनली रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये टॉप पे जो है दिस इज बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप जो कंपाइलर है उसको बता रहे हैं कि जब वो लिंकर की स्टेज पे जाएगा, जब उसे लिंक करना होगा, तो वो पहले आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी से, आईओस्ट्रीम जो लाइब्रेरी के अंदर एक फाइल मौजूद है, उस फाइल को उठा के इसके साथ जोड़ दे। ठीक है, आईओस्ट्रीम में सी आउट और इसकी दीगर कमांड्स पड़ी हुई हैं, अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपकी सी आउट जो है वो रन नहीं होगी, वो एरर देगा। आप अगेन करके देखेंगे एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, कि आप आईओस्ट्रीम रिमूव करें और रिमूव करके मुझे बताएंगे, या आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम आईओस्ट्रीम रिमूव करते हैं, फॉर एग्जांपल जो पहली लाइन है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, तो उससे यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। बाकी चीजों पे हम बाद में आते हैं और एंड में, लेकिन आईओस्ट्रीम का आपको बहरहाल आइडिया हो गया। तो अगर हम इसको रन करें तो उसमें ये दिस इज व्हाट कम्स आउट, प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड आउटपुट द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट्स द फर्स्ट लाइन, लेंथ 6 थी, विड्थ 4 थी, पैरामीटर 20 था और एरिया 24 है। अच्छा, अब उसी को वो मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, और दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपने अभी तक नहीं किया, आपको कमेंट्स का आइडिया नहीं है, तो दिस इज हाउ कमेंट्स आर जनरली रिटन। ये ग्रुप कमेंट्स हैं, बैच कमेंट्स हैं, जब आप डबल डाई से किसी को स्टार्ट करते हैं तो वो सारे के सारे कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी डिफरेंट आर्टिस्टिक वेज ऑफ राइटिंग द कमेंट्स। ये एक तरीका है जो इन्होंने यूज किया हुआ है, और इसमें इन्होंने गिवन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, दिस प्रोग्राम्स कंप्यूट, आपने हर प्रोग्राम के टॉप के ऊपर उसका जेनेरिक पर्पस लिखना है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ठीक है, इस और वो क्या इनपुट पे ले रहा है और वो क्या चीज वो आउटपुट पे दे रहा है। तो वो कहता है कि अगर उसको पहले से गिवन हो लेंथ और विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो तब वो आपको कंप्यूट भी करेगा और उसके बाद आउटपुट भी करेगा पैरामीटर और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कमेंट्स का सेक्शन हो गया। देन ये एरिया जिस तरह मैंने आपको बताया था, दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, जहां पे वेरिएबल्स लेंथ, विड्थ, एरिया और पैरामीटर को डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेरेशन में हम बताते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, डाटा टाइप जो होगी उसके हिसाब से उसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि लेंथ जो है वो डबल है, इसका मतलब ये है कि लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाया जाए, मेमोरी में एक स्लॉट एलोकेट की जाए, उस स्लॉट का नाम लेंथ रखा जाए, और उसमें जो वैल्यू स्टोर की जा सकती है उसके लिए कितनी जगह एलोकेट हो, जो कि डबल को रिक्वायर्ड होती है, जो कि एक डेसिमल नंबर ऑफ अ डेटा टाइप डबल, उसके मुताबिक उसको दी जाए। उसके बाद दिस सी आउट एज वी ऑलरेडी नो इज द आउटपुट स्टेटमेंट। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट टू शो यू कि ये मल्टीपल लाइंस पे भी लिखा जा सकता है इन दिस फॉर्मेट। नोटिस के स्कैन पे सेमीकोलन नहीं आया, क्योंकि सेमीकोलन नहीं आया तो ये स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रही है। And then finally you have got a line here which length is equal to 6, which is an assignment statement. Assignment statement का मतलब क्या है? ये कहती है कि लेंथ जहां पे भी आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है लेंथ का, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दें, उसकी वैल्यू जो भी थी प्रीवियसली उसको रिप्लेस कर दें किसके साथ, 6 के साथ। उसमें पहले वैल्यू कोई भी नहीं थी, ठीक है, तो उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अच्छा, अगेन ये पूरा कोड आपने खुद रन करके चेक करना है, बगैर रन किए नहीं होगा। आई वुड वांट कि आप लोग डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर चुके हों और उसके ऊपर ये कोड पूरा कॉपी पेस्ट करें। इसकी जो फाइल में शेयर करूंगा उस फाइल को एज इट इज रन करके देखें, उसमें चेंजेस करके देखें, उसमें देखें कि ये हर चीज जो है वो कर क्या रही है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आएगी, आपको ये चीज समझ से आपसे बाहर होगी। ठीक है, विड्थ 4 सेट की, पैरामीटर आपने कैलकुलेट किया। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर एग्जांपल हम ये पैरामीटर वाली स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, या नीचे एरिया वाली स्टेटमेंट जिस तरह से ली हुई है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या है, आप देखें इसमें
मल्टीप्लाई कर रहा है एरिया जो है वो निकालने के लिए लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, तो इसमें पहले क्या होगा, हियर इज हाउ इट्स गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड दिस पर्टिकुलर लाइन। सबसे पहले वो कहेगा कि लेंथ की वैल्यू क्या है। द आंसर इज लेंथ की वैल्यू जी, लेंथ नाम का वेरिएबल मौजूद है जी, लेंथ नाम का वेरिएबल मौजूद है, उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, उसमें वैल्यू पड़ी हुई है 6, वो मल्टीप्लाई हो रही है विड्थ नाम के वेरिएबल के साथ। अच्छा, लेंथ का वेरिएबल में वैल्यू 6 है, विड्थ के वेरिएबल में वैल्यू 4 है, तो पहले दोनों की वैल्यू फेच करेगा। ठीक है, 6 और 4 आ गए उसके पास, उसके बाद उसमें ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंस के ऊपर चल रहा होता है, हम इसकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस और सबकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है वो एक्चुअली वैल्यू फेच करने की है इंडिविजुअल वेरिएबल्स की। तो हमने जो वैल्यू फेच की है वो लेंथ की फेच कर ली 6, विड्थ की फेच कर ली 4। ठीक है, अच्छा एरिया जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, इट्स अ वेरिएबल, लेकिन नोटिस दिस थिंग कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट is executed at the end. It is just used to store things. ठीक है, it is not used to fetch things. लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें सिर्फ एरिया लिखा हुआ है, तो एरिया में हमने स्टोर करना है, जिस हम टिपिकली करते हैं x इज इक्वल टू 4+2, तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू 6 है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। द रीजन फॉर दैट इज के x जो है वो 4 और 2 को ऐड कर रहा है। ठीक है, उनका रिजल्ट उसमें स्टोर हो रहा है। तो in reality x is just a storage. Similarly here area is just a storage. Left hand side is always just a storage जिसमें फाइनल वैल्यू स्टोर होती है। तो सिंगल इक्वल टू के साथ जब भी चीज आएगी तो लेफ्ट हैंड साइड को उसने फिक्स कर लेना है, राइट हैंड साइड को उसने इवेल्युएट करने की कोशिश करनी है। इवेल्युएशन वाली साइड पे उसने पहले जितने वेरिएबल्स उनकी वैल्यू फेच करनी है, सो इट बिकम्स 6 and 4। उसके बाद ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, सो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 6 into 4 is 24। 24 वैल्यू जो है, अब ये वैल्यू सेव कर ली जाएगी किसमें, एरिया के अंदर। सो एरिया में अब 24 पड़ा हुआ। सिमिलरली अगर पेरीमीटर को इवेल्युएट करें तो सबसे पहले वो लेंथ और विड्थ की वैल्यू लाएगा, 6 और 4 उन दोनों को ऐड करेगा, क्योंकि ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, लिहाजा 6 + 4 करके आपके पास 10 आ गया। 10 को फिर मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, 20 आ गया। अब फाइनली जो ये 20 है ये वैल्यू पैरामीटर में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह फिर अगर हम कंटिन्यू करें तो नीचे फिर सी आउट की 4 स्टेटमेंट्स हैं। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप इसको एक सी आउट से भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ट्राई ऑल दीज डिफरेंट वेरिएशंस। अच्छा, अब एक टर्म मैं मुसलसल यूज कर रहा हूं और मैंने आपको क्लास में इसकी एग्जांपल भी दिखाई थी, व्हिच वाज व्हाट इज अ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन whose contents can be changed। ठीक है, बल्कि लेट मी say this thing, normally variable is a memory location whose contents are changed। और normally का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में और हर जगह जरूरी नहीं होता। कई दफा आप जो है कांस्टेंट वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं और देयर आर मेनी अदर थिंग्स, लेकिन फॉर अ स्टार्टअप लेट्स से a variable is just a memory location for us जिसके अंदर कोई एक वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, और बिगिनिंग तो, और वो कंटेंट्स हम अगेन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं, इस तरह हमने देखा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जब मेमोरी एलोकेट की, हमने 4 डिफरेंट वेरिएबल्स को हमने डबल्स के साथ इनिशियलाइज किया, जिसमें लेंथ था, विड्थ था, एरिया था, पेरीमीटर था। उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइम की लेंथ इज इक्वल टू 6। तो जब हम लेंथ इज इक्वल टू 6 को एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है कि लेंथ को जो एक डबल के बराबर की एक मेमोरी दी गई है, एक लोकेशन, एक फिजिकल जगह दी गई है रैम के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर, तो वो उस लोकेशन के अंदर वो क्या स्टोर कर रहा है, उस लोकेशन के अंदर वो 6 को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेंथ इज इक्वल टू 6 यहाँ नजर आ रही है। देन मूविंग ऑन, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन या सब प्रोग्राम जिसको हम कह सकते हैं, इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन एग्जीक्यूटेड इट अकम्प्लिशेस समथिंग। ठीक है, एक प्रोग्राम का छोटा हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ द योर मेन प्रोग्राम, जो कि क्या बताता है, जो कि कुछ स्टेटमेंट्स को इकट्ठे कर लेता है। जब हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक खास किस्म का एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जितने फंक्शंस देखे हैं वो नॉर्मली प्री डिफाइंड या स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। लाइब्रेरी में पहले से उनको डिफाइन किया हुआ है, सी आउट का फंक्शन आपने देखा है एंड सो ऑन।
तो ये प्री डिफाइंड या स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। लेकिन ये हम ऑफ कोर्स खुद भी लिख सकते हैं, और जो खुद लिखने वाले फंक्शंस हैं ये हम बाद में बात करेंगे कि इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्या होते हैं। फिलहाल से ये समझना जरूरी है कि आप जो अपने कोड में टॉप पे लिख रहे थे इंट मेन, ठीक है, इफ आई गो बैक टू योर मेन प्रोग्राम, तो यहाँ पे एक इंट मेन ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो अ हियर मेन इज अ फंक्शन, ठीक है। क्या करता है, क्योंकि अगेन अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो सिमिलरली जो टास्क हैं वो आप फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन देयर आर सम स्पेसिफिक सिंटेक्स रूल्स, इनमें से काफी सारे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मसलन सेमीकोलन डालना इज इट्स नेसेसरी एट द एंड ऑफ ईच लाइन, तो इनको हम सिंटेक्स रूल्स कहते हैं। These are rules that specify which statements or instructions are legal or valid, ठीक है। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें जाहिर है दे हैव टू बी लीगल, दे हैव टू बी वैलिड, वरना प्रोग्राम को समझ नहीं आएगी। तो प्रोग्राम से कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड अ वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है, लीगल स्टेटमेंट एंड अ वैलिड स्टेटमेंट। ओके, then there is another thing called semantic rule. Semantic rule is basically semantic का अगर आप मीनिंग पे जाएं, सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि ज़ाहिरी शिनाख्त, ठीक है। अगर एक चीज एक ग्रामर का रूल है फॉर एग्जांपल, और वो रूल ही ओबे नहीं हो रहा, ग्रामेटिकली सेंटेंस इज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब है कि उसमें सिमेंटिक का मसला है, ठीक है। उसका जो मीनिंग है वो गलत है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से या सॉरी वो सिंटेक्स की गलती है। एंड द रीजन आई एम सेइंग कि जो ग्रामर का रूल है सिंटेक्स की गलती है वो ये है, वी ऑलवेज expect for example that we have a noun first followed by a verb followed by let's say another noun or an adverb or whatever, ठीक है। एक specific syntax होता है इंग्लिश सेंटेंस का। तो so many times what will happen is कि आप syntactically you are right लेकिन semantically it does not make any sense, ठीक है। आप जुमले बनाते हैं, जुमले बनाते हुए जो है वो it should always make sense, ठीक है। For example he was eating, this is making complete sense as well as this is grammatically correct, ठीक है। इसका syntax बिल्कुल ठीक है। he followed by a helping noun followed helping verb followed by a verb, he was eating, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ये सिंटेक्स बता रही हैं। और जब आप इसके मीनिंग में जाते हैं कि अच्छा अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि वो खा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब जो मीनिंग है दैट आल्सो मेक्स सेंस। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज कर दें कि जो कि सेंस ना बनाती हो, ठीक है, टोटली जो कि मीनिंगलेस हो, जिनका कोई तुक ही ना बनती तो हो सकता है कि सिंटैक्टिकली तो वो ठीक हो, सिंटेक्स उनका ठीक हो, ग्रामर उनकी ठीक हो, लेकिन जहां मार खा रही हैं उनकी मीनिंग का मतलब का मार खा रही हैं, ठीक है, उनका मतलब कोई तुक नहीं बना रहा, वो सिमेंटिक मसला है। हमारे प्रोग्राम में भी we'll have these kind of issues, we can have semantic rules that are being violated and we need to determine the meaning of the instruction, all the instructions should make sense। तो syntax अपनी जगह लेकिन semantics भी important है। Then we move on to programming languages. Programming language is nothing but a set of rules, symbols and special words। Programming language क्या करती है, वो हमें syntax बताती है, ठीक है, set of rules for syntax। जो उसका मीनिंग है that is always 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 dependent on you। आप उससे क्या मीनिंग निकालना चाहते हैं, आप क्या काम कराना चाहते हैं। अगर आपने सिंटेक्स ठीक लिखा हुआ है तो प्रोग्राम विल नॉट क्राई आउट कि जी आप जो करना चाह रहे हैं ना वो ये नहीं करेगा, क्योंकि इट हैज नो वे ऑफ नोइंग योर इंटेंशंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर इज डम्ब एज आई सेड बिफोर। इट विल ओनली डू व्हाट यू टेल इट टू डू एंड इट विल एग्जैक्टली डू व्हाट यू टेल इट टू डू, ठीक है। अगर वो आपको एरर दे रहा है तो अल्टीमेटली इट विल कम डाउन टू यू एज अ पर्सन। ये आपका काम है कि उसको आपने ठीक करना है, ठीक है। सो कमेंट्स जो हैं अगर हम वहां से स्टार्ट करें प्रोग्राम की बात, तो कमेंट्स आर यूजुअली फॉर द रीडर एंड नॉट फॉर द कंपाइलर। ऑफ कोर्स कमेंट्स जो हैं वो जो कोड या कोडर होगा बाद में, यूजुअली यू आर नॉट द ओनली प्रोग्रामर एट कपल ऑफ टाइम्स,
तो कमेंट्स का बेसिक पर्पस ये है कि हम अपने रीडर को, अपनी रीडेबिलिटी को बेहतर करें, अपनी मेजर जो लेट से हम कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं रिगार्डिंग और प्रोग्राम, रिगार्डिंग और कोड, रिगार्डिंग और स्पेसिफिक लाइंस, तो उसके लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वो लाइंस ऐसी होंगी ज़ाहिर है कि जो हम कंपाइलर को नहीं बताना चाहते। वी डोंट वांट टू टेल द कंपाइलर हाउ टू comment. Comment is not for the compiler. These are instructions. These are not instructions. These are English language words जो कि हमारे अपने या हमारे fellow developers के लिए हैं. For example, अगर आपने किसी जगह कमेंट करना है, सिंगल लाइन कमेंट करना है, तो you use double forward slash, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये कमेंट करूँ किसी लाइन के अंदर दिस इज अ C++ प्रोग्राम, तो ये कंपाइलर इस पे कुछ भी नहीं करेगा। द कंपाइलर इज नॉट सपोज्ड टू रीड दिस लाइन, इट जस्ट इग्नोर्स दिस लाइन, इट नोज कि दिस इज नॉट फॉर मी टू कंपाइल एंड कन्वर्ट, ठीक है। तो वो जहां पे भी जिस लाइन के आगे लिखा होगा या जहां से भी ये स्टार्ट होंगे लाइन के बीच में भी, उसके आगे वाले हिस्से को वो इग्नोर कर देगा। सो नोटिस दिस थिंग, इसके बाद आप सेमीकोलन में ही डाल सकते हैं, क्योंकि सेमीकोलन इसके बाद डालेंगे तो बेसिकली इट विल इग्नोर इट ऑलरेडी। तो इससे पहले आपने जो भी कमांड कोड लिखा होगा उसमें सेमीकोलन डाल के उसको फिनिश ऑफ करना है। दिस कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू लाइन, आप बिल्कुल नई लाइन को इससे स्टार्ट करते हैं, बट इन दैट केस ऑफ कोर्स वो पूरी लाइन जो है यहाँ से इसके आगे वाली वो निगलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, sometimes we need to write code in on multiple lines, जिस तरह कि हमने एग्जांपल में पीछे देखा था, टॉप ऑफ द फाइल हमने उसमें मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स लिखे हुए थे। व्हाई वाज दैट पॉसिबल? मल्टीपल रीजंस। एक तो ये था कि हर लाइन के शुरू में हमने 2 डबल डैश डाले हुए थे, which was why it was working. An alternate could have been to use this style, use a um, forward slash, so use a backslash and then a steric symbol with it, ठीक है। तो आपने इसके साथ स्टार्ट करना है, इसके बाद जितनी मर्जी लाइनें हो इसके अंदर लिखी हो सारे के सारे कमेंट्स हैं until this particular sequence is found, steric followed by a backslash again। तो जब steric और backslash के दरमियान जो भी कुछ होगा वो उसको कमेंट के तौर पे लेगा, चाहे वो 2 लाइनें हो, 1 लाइन हो, कोई लाइन ना हो या 10,000 लाइनें हो, it's going to take all of them as comments, उसको कंपाइल नहीं किया जाएगा। अच्छा, आप कुछ स्पेशल सिंबल्स की तरफ आ जाते हैं, एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट यू काइंड ऑफ नीड टू नो। A token is the smallest individual unit of a program that can be written in any language. The term token itself means that it is basically the smallest unit, and in terms of programming we always call token as the smallest unit that can be written in a program, in a language. In C++, there are many tokens as well, and that includes special symbols, word symbols and identifiers. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल सिंबल्स के साथ। ऑफ कोर्स यू विल नीड टू गो थ्रू देम वन बाय वन एंड काइंड ऑफ मे बी गेट टू देयर मीनिंग बाय यूजिंग योर कोड, ठीक है। मैं इसमें आपको डिफरेंट कोड की एग्जांपल्स जो है वो अपलोड कर दूंगा, एंड यू कैन रन देम एंड यू कैन सी द मीनिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। So special symbols in C++ include plus. Plus is for addition, of course. Minus is for subtraction. Steric is for multiplication. And also अपने comments में भी इसको देखा, अगर combination में होते comments के लिए भी use हो सकता है, लेकिन steric itself alone, stand alone जो token है, that means it's used for multiplication. जिस तरह कि हमने example में भी देखा था parameter वाली और area वाली में। Then we have got the divide operator, which is a single backslash. Dot operator, you've got the semicolon, ठीक है, हमने देखा लाइन एंड करने के लिए यूज हो रहा है। क्वेश्चन मार्क, दिस आल्सो इज अ स्पेसिफिक मीनिंग जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होता है, बट let it go for fourth. Then you've got a comma, you've got less than equal to symbol, you've got not equal to sign, you've got equal to. This is a specific meaning, this is different from the assignment operation जो single equal to है, वो भी एक special symbol है, ठीक है, लेकिन double equal to भी एक special symbol है। Then you've got greater than equal to, ठीक है।
तो ये कुछ सिंबल्स हैं, हम इनको शायद डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हैं और कुछ दी हुई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, देन वी कम ऑन टू रिजर्व्ड वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जो कि आप प्रोग्राम में रीडिफाइन नहीं कर सकते, उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते, उनको खुद से नहीं बता सकते। मसलन और उनको इस हद तक फिक्स कर दिए प्रोग्राम ने कि दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग अदर देन द इंटेंडेड यूज। इंट है, आप खुद से इंट डिफाइन नहीं कर सकते। मसलन मैं ये नहीं कह सकता कि कार इंट, ठीक है, वो मुझे कहेगा कि दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि इंट इज अ रिजर्व्ड वर्ड, इट्स अ की वर्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड एनीवेयर एल्स। सिमिलरली फ्लोट, डबल, कार, कॉन्स्ट, वॉइड, रिटर्न, और ये सारे आप कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में देखेंगे, अभी डेटा टाइप्स में भी आपको ये नजर आएंगे डिटेल में। So what is an identifier? Identifier is the name of something that appears in a program. It consists of letters, digits and the underscore character. ठीक है, जो भी आपने नाम रखना है अपने एक वेरिएबल का, ठीक है, वो नाम आइडेंटिफायर कहलाएगा, और इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। एक्चुअली नॉट मस्ट, इट कैन कंसिस्ट, ठीक है, हो सकता है कि ऑल लेटर्स का हो, कुछ डिजिट्स का हो, ठीक है, सारे डेट्स कैसे नहीं हो सकता कि वी कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ठीक है, वो जिस तरह से आगे लिखा हुआ है कि मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, लिहाजा वो उसमें कुछ डिजिट्स हो सकते हैं, कुछ लेटर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन कम से कम उसके अंदर लेटर या अंडरस्कोर जरूर होगा, क्योंकि उसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा डिजिट्स हो तो बिल्कुल इट कैन बी ऑल डिजिट्स एज वेल, ठीक है, दैट्स अ वैलिड नेम। Another thing that you need to note is, and as I've already told you, C++ is a case sensitive language, so number capital is not the same as number in small. अच्छा, इसी तरह दो आइडेंटिफायर्स जो कि हम यूज कर रहे हैं बेसिकली एज इनपुट एंड आउटपुट, आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, दैट इज द सी आउट एंड सी इन कमांड। अनलाइक रिजर्व्ड वर्ड्स, प्रीडिफाइंड आइडेंटिफायर्स में बी रीडिफाइंड, लेकिन जाहिर है कि जो ये प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स सी आउट और सी इन, इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, इसके फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इट्स नेवर अ गुड आइडिया। इट्स बेसिकली जिस पर्पस के लिए इनको उसी के लिए इस्तेमाल करते जाना चाहिए। So what are some legal identifiers in C++? First, FIRST, conversion, pay rate starting with a capital P. It's different from the pay rate written here. लेकिन आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर हम इसको दो डिफरेंट नाम दें, ठीक है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं इलीगल आइडेंटिफायर्स के, ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनको हमें नहीं यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय सैलरी, स्पेस इज नॉट अलाउड between, or space is not allowed as part of name of a identifier, ठीक है। hello and then an exclamation mark is not allowed. 1 plus 2 plus has a specific meaning, so again this cannot be allowed. Second is incorrect because a legal name cannot begin with a digit. So white spaces की मैंने बात आपसे की थी, and white spaces was के it does not matter in a lot of places. white spaces जो है वो कोई असर नहीं करते, हालांकि हमने आइडेंटिफायर में देखा कि it does matter. आइडेंटिफायर आप नाम उसमें white spaces यूज नहीं कर सकते in any form. और white space होती क्या है? white spaces basically a blank single एक space है, tab हो सकता है, या न्यू लाइन कैरेक्टर्स को भी हम white space कहते हैं। तो टिपिकली जो ये चीजें हैं, ये स्पेशल सिंबल्स को, रिजर्व्ड वर्ड्स को, आइडेंटिफायर्स को अलहदा करने के लिए या बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं। द मेन रीजन इज व्हाई वाइट स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स वाइट स्पेसेस का फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो एक लाइन में पूरे का पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो है लेट्स से कि देयर आर 100 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, ईच इंस्ट्रक्शन एंडिंग विद अ सेमीकोलन। तो आपने वो लिखा पूरा, जब आपने लिखा तो आप एक ही लाइन में बगैर वो किए नेक्स्ट लाइन करेक्टर डाले, नेक्स्ट लाइन में जाए, आपने डायरेक्ट एक ही लाइन में सारे का सारा प्रोग्राम लिख दिया, सेमीकोलन, उसके बाद डायरेक्ट अगली कमांड स्टार्ट, यू कैन डू दैट, ठीक है।
अ बेटर वे वुड बी कि आप उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करें, जिस तरह कि हमने प्रोग्राम में देखा, जितनी आउटपुट की स्टेटमेंट्स हैं वो एक ब्लॉक में है, जितनी जो कंप्यूटेशन की स्टेटमेंट्स हैं वो एक ब्लॉक में है, जितनी आपकी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो एक ब्लॉक में है, तो वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड द रीजन व्हाई वी यूज वाइट स्पेसेस or why the white spaces should be used properly or utilized properly is that these white spaces make your program more readable. ठीक है, अगर आप वाइट स्पेसेस को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी रीडेबिलिटी का मसला आएगा। मैंने आपको गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में बताया था कि ईच लाइन मस्ट बी टैब्ड प्रॉपर्ली, ठीक है, सिंगल टैब, उसका एक फॉर्मेट है पूरा, ठीक है, वो आपने फॉलो करना है। टैब इज अ वाइट स्पेस, इट इंप्रूव्स रीडेबिलिटी। ब्लॉक्स को आपने एक्स्ट्रा लाइन स्पेस एक दे देनी है, बीच में एक लाइन छोड़ दें खाली, ब्लैंक लाइन डिपिक्ट्स के नेक्स्ट पूरा एक ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और आप चाहें तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक कमेंट भी डाल सकते हैं कि द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ कोड outputs the data. The following block of code declares the variables. The following block of code outputs the variables. ठीक है, so on and so forth. तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लॉक्स बनाएं। ब्लॉक्स के लिए आप वाइट स्पेसेस यूज कर सकते हैं। वाइट स्पेसेस के अलावा मतलब ऑफ कोर्स टैब्स उसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके अंदर न्यू लाइन इंक्लूडेड है, उसके अंदर जो है वो सिंगल ब्लैंक्स या ब्लैंक लाइन इंक्लूडेड है। Okay, then we come on to data types. Data types are basically a set of values that together with a set of operations perform a particular thing. ठीक है? For example, हमने डबल डेटा टाइप देखी है, हमने स्ट्रिंग देखेंगे, हम और भी इस तरह के डिफरेंट डेटा टाइप्स देखेंगे। और डेटा टाइप्स जो हैं ये बताती हैं कि जो वेरिएबल है ये इसको कितनी मेमोरी एलोकेट की जाए। That's it. From computer perspective, वो सिर्फ ये बताती है कि डेटा टाइप अगर ये है, कार है फॉर एग्जांपल, तो इसको एक जो अगर फॉर एग्जांपल बुलियन है तो बुलियन को सिर्फ आपने एक बिट देनी है, ठीक है, या ट्रू या फॉल्स है। अच्छा, अगर वो बुलियन के बजाय लेट्स से इट्स बेसिकली एन इंटीजर, तो उसको एक इंटीजर स्टोर करने के लिए जितनी जगह सिस्टम मांग रहा है उतनी जगह उसको देनी है। अगर डबल है तो डबल के लिए इट हैज अ डिफरेंट मेमोरी स्पेस एंड सो ऑन। That's from the perspective of a computer. अगर आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव पे आए या हमारे प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव पे आए, from that perspective a data type is something that tells us as well कि हम इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर कराना चाहेंगे। क्या आप इसमें एक इंटीजर स्टोर कराना चाहते हैं, क्या आप इसमें एक छोटा डेसिमल नंबर यानी कि फ्लोट स्टोर कराना चाहते हैं, क्या आप इसमें एक लंबा डेसिमल नंबर या ज्यादा बड़ा डेसिमल नंबर जैसे कि डबल है डबल स्टोर कराना चाहते हैं। दैट इज ऑल अप टू यू। तो जिस तरह से आप डिक्लेयर करेंगे उतनी उसको मेमोरी एलोकेट होगी। ऑफ कोर्स डबल एंड फ्लोट टेक मोर मेमोरी देन इंटीजर, ठीक है, तो यू कैन चेक दैट। मैंने इसका जो है वो पिछले लेक्चर के एंड में आपको इसका साइज और चीजें बताई थी थोड़ी सी, तो वो है। अच्छा, C++ में डेटा टाइप्स हैं, they typically fall into three main categories. One is a simple data type, the other is structured data type, and finally we have got a thing called pointers. तो सिंपल डेटा टाइप जो है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे या इस मतलब इस कोर्स में डिस्कस होगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप जो है ये गालिबन विल बी वर्किंग ऑन इट इन मे बी इन द नेक्स्ट कोर्स, ऊप के कोर्स में या डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में इसमें मेन डिस्कशन होंगी। And then finally you have got pointers. Pointers is something जो कि हम इस कोर्स में भी करेंगे towards the end, और नेक्स्ट कोर्स में ऊप के कोर्स में तो बहुत ज्यादा डिटेल में होगा। And finally you will be specifically utilizing it in the data structures course. तो ये तीनों के तीनों important concepts हैं जो कि वक्तन फवक्तन आपको इसमें आते रहेंगे। लेकिन सिंपल डेटा टाइप्स जो हैं वो आप अभी से स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्ली इस पूरे कोर्स में आप इसको मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल डेटा टाइप्स के जो हैं वो तीन मेन कैटेगरीज या सब कैटेगरीज हो सकती हैं मजीद। एक चीज को हम कहते हैं इंटीग्रल यानी कि इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल नंबर्स दैट आर विदाउट अ डेसिमल, और उसमें ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट अदर जो है ना कैटेगरीज या इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन है। मसलन कार या कैरेक्टर है, ठीक है, सिंपल कैरेक्टर। इसी तरह अनसाइंड कैरेक्टर हो सकता है। जो कैरेक्टर है वो बाय डिफॉल्ट साइंड कैरेक्टर होता है। साइंड का मतलब है कि उसमें प्लस या माइनस जो है वो मैटर कर रहा होता है, ठीक है।
आपके पास शॉर्ट है, आपके पास इंटीजर है, इंट सिंपल, आपके पास लॉन्ग है, आपके पास बुलियन बूल है, आपके पास अनसाइंड कैरेक्टर है, अनसाइंड शॉर्ट है, अनसाइंड इंट है, अनसाइंड लॉन्ग है। अगेन ये सारी चीजें आप खुद से एग्जांपल्स में यूज करके देखें। ट्राई गिविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। और मे बी मैं इसकी अभी एग्जांपल एक आध डिस्कस करूं एंड विल सी दिस इन फर्दर डिटेल। तो इंटीग्रल डेटा टाइप में नो डेसिमल्स कैन कम, ठीक है। इफ दैट इज क्लियर, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अगर आपने डेसिमल्स यूज करने हैं तो आप फ्लोटिंग पॉइंट को यूज करेंगे जिसमें कि डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं। इन दिस कैटेगरी वी हैव गॉट थिंग्स लाइक फ्लोट एंड डबल। फाइनली यू हैव गॉट अ डेटा टाइप कॉल्ड एनुमरेशन टाइप, इनम कहते हैं हम इसको। और इनम जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है, इसमें यूजर खुद डिफाइन कर सकता है कि वो कितनों में से वैल्यू सेलेक्ट करना चाहता है। सो दिस इज द थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिंपल डेटा। अच्छा, अब आप इसमें डेटा टाइप से फर्क क्या पड़ता है, लेट्स लुक एट दैट थिंग। मैंने आपसे कहा था कि बीइंग अ प्रोग्रामर फ्रॉम और पर्सपेक्टिव जब हम बात करते हैं तो डेटा टाइप्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल अस व्हाट वी कैन स्टोर इन देम, किस तरह की चीज आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंट लूं तो इंट में बेसिकली 4 बाइट्स उसका फिक्स साइज है। 4 बाइट्स का मतलब है कि उसमें 32 डिफरेंट बिट्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। 32 बिट्स में से एक बिट यूज हो रही है साइन के लिए, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड द नेक्स्ट 32 बिट्स, 31 बिट्स, द रिमेनिंग 31 बिट्स आर यूज्ड टू स्टोर अ नंबर, वो नंबर उसमें स्टोर करने का होगा। और क्योंकि वो नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो साइन बिट तो आपने यूज कर ली, ठीक है। 2 raised to power 31 is the maximum number that can be stored in negative and then also in positive, ठीक है। -1 because जो एक जीरो बीच में आता है, it's also taken from the positive side। तो -2 raised to power 31 to +2 raised to power 31 -1 तक इस रेंज के अंदर के वो वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, दिखा सकता है। सो द लार्जेस्ट वैल्यू that we can store in an int without falling away, without any issue, is 21474834647, and the minimum value, the lowest value that we can store in an int is -21474834648। अच्छा, इससे कम के नंबर को स्टोर करने की कोशिश करें, इससे ज्यादा को स्टोर करें, ओवरफ्लो कर जाएगा। ओवरफ्लो करने का मतलब ये है कि वो बिट से बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा तो वो एक अजीब सा नंबर निकल आएगा, ठीक है। इट विल बी अ न्यू नंबर, इट वोंट, और इट विल गिव यू एन एरर, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर कि वो हो सकता है उसमें एरर ही दे दे, ठीक है। या ओवरफ्लो करेगा या एरर देगा। ओवरफ्लो करेगा तो आपको अजीब सा नंबर देगा जो कि ये नंबर नहीं होगा जो आप स्टोर करना चाह रहे होंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। ये ऐसे है कि एक जग है, उसमें उतना ही आप भर सकते हो जितना उसकी जगह हो, ठीक है। तो आपने मेमोरी एक एलोकेट की हुई है, यू कैन नॉट एक्सीड दैट दैट मच प्लेस। अच्छा, सिमिलरली वी हैव गॉट अनदर डेटा टाइप कॉल्ड बूलियन। बूलियन हैज अ डिफरेंट पर्पस। इसमें सिर्फ आप एक बिट स्टोर कर सकते हैं। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है कि इट्स स्टोरेज इन बाइट्स, इट्स बेसिकली 1 बिट, इट्स 1/8 ऑफ अ बाइट। और इसमें सिर्फ जो है वो एक बिट जब होती है तो इट कैन आइदर बी ऑफ और ऑन, ठीक है, 0 या 1 हो सकती है, तो इट्स आइदर ट्रू और फॉल्स। तो उसमें बेसिकली सिर्फ आप 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देन यू गॉट एनीथिंग कॉल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है, दैट इज राइट, एब्सोल्युटली। और जो 1 बाइट है दैट इज अगेन, क्योंकि ये साइंड है, तो साइन का मतलब ये है कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि बेसिकली 8 के अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स आ सकते हैं, एक बाइट आपने एक एक बिट निकाल दें फॉर 8 बिट में से एक बिट निकाल दें फॉर साइन, तो पीछे 7 बिट्स रह जाती हैं। 7 बिट्स में आप 2⁻7 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो नेगेटिव 2⁻7 से लेकर पॉजिटिव 2⁻7 -1 तक की वैल्यूज रेंज तक स्टोर हो सकती हैं। यानी कि -128 से लेकर पॉजिटिव 127 तक आप कैरेक्टर के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब आपको ये जान के हैरत होगी कि कैरेक्टर जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि इट कैन स्टोर बेसिकली एनी कैरेक्टर, लेकिन हम तो उसमें नंबर स्टोर कर रहे हैं। व्हाई इज दैट? द रीजन इज एस की।
आप देखेंगे कि कैरेक्टर्स जो हैं वो दे बेसिकली स्टोर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी और व्हाटएवर, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होता है, ठीक है। लाइक आई हैड सेड कि कैपिटल ए जो है वो स्टार्ट होता है 66 से रिप्रेजेंट होता है कैरेक्टर्स के अंदर। तो आप जो है वो एक्चुअली कैरेक्टर्स में याद रखना है कि कैपिटल ए स्टोर नहीं हो रहा होता, वो वैल्यू स्टोर कर रहा होता है उसकी विच इज 66 विच इज इन बाइनरी। तो वो बाइनरी में 66 को स्टोर कर रहा होगा, लेकिन उसको क्योंकि हमने कैरेक्टर का लेबल लगाया हुआ है, तो जब वो डिक्लेयर, जब वो उसमें से पिक करेगा, हमें पता है डेटा टाइप कैरेक्टर है, तो उस एरिया में जब पिक करेगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली 66 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कैरेक्टर दिखाएगा विच इज कैपिटल ए। अगर फॉर एग्जांपल 68 जो कि कैपिटल सी के बराबर है, तो इसी तरह से वो 68 स्टोर हुआ होगा, लेकिन पिक करने के बाद हमें वो उसको कैपिटल सी दिखा देगा। So the longest possible thing that we can declare is long, and that is shown also here. 64 bytes उसकी storage है, and this is what it is. You need to know a few things here. मैंने आपको पहले बताया था कि I didn't want to fix the size of each of these variables, and the reason was कि different compilers may allow different ranges of values. हो सकता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, आपके कंपाइलर के ऊपर वो डिफरेंट वैल्यू शो करता हो। अगर आपका 32 बिट जो बाइट इंस्ट्रक्शन सेट का पीसी है, इट विल हैव अ डिफरेंट स्टोरेज रेंज। अगर आपका 64 बिट का जो है वो रजिस्टर है, तो इट विल हैव अ डिफरेंट range of values. So it depends very much on your compiler, operating system, and a lot of other different parameters. तो इसलिए इस वजह से आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स देम, लेकिन एक जेनेरिक आपको आइडिया दे दिया है कि अगर इंट 4 बाइट्स के बराबर है तो उसमें कितनी कहां से कहां तक वैल्यूज आ सकती हैं। अगर एक बूल सिर्फ ट्रू और फॉल्स, और ट्रू फॉल्स रहता है, एक बिट ही रहता है, इट्स जब 1 बिट, इट्स नॉट बाइट, इट्स 1 बिट। तो ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो फॉर एग्जांपल इंट के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं -6728 078 + 763। अच्छा, कॉमा यूज नहीं करना है इसके अंदर। कॉमा जो है ना, इट्स बेसिकली मेंट फॉर सेपरेटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। हम जब लिस्ट देंगे और लिस्ट आगे देखेंगे तो उसमें हम कॉमा का स्पेसिफिक यूज देखेंगे। यहाँ पे कॉमा आपने नहीं देना, क्योंकि इट्स नॉट अ लिस्ट, इट्स अ सिंगल नंबर। तो जो 1000 के लिए और उसके लिए कॉमा लिखेंगे, वो हमेशा आपको गलत रिटर्न करेगा। इट्स अ कॉमन एरर दैट यू मेक मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, फिर हमने बुलियन देखा। बुलियन इज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप दैट कैन हैव टू वैल्यूज, वन इज ट्रू और फॉल्स। टिपिकली ये बुलियन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, और ट्रू और फॉल्स के दो लॉजिकल वैल्यूज हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें तीनों लफ्ज बूल, ट्रू और फॉल्स तीनों के हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। Then you have got character data type, which is smallest integral data type. It is used for single characters, letters, digits, and special symbols. जैसा मैंने बताया था आपको, एक्चुअली इट्स बेसिकली स्टोरिंग इट एज अ नंबर, एज ASCII कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन वो जब हमें शो करता है तो इट कैन शो अस दीज। और हर कैरेक्टर को हम एक सिंगल कोट के अंदर, नोटिस हमने हर कैरेक्टर को जब सेव करना है, जाहिर है हम नंबर तो याद नहीं रख सकते। आई कैन नॉट रिमेंबर व्हाट स्मॉल a इज, ठीक है। ऑफ कोर्स निकालने को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आई कैन नॉट रिमेंबर इट। तो आसान तरीका क्या होता है, कैरेक्टर my name is equal to सिंगल कोट्स में के अंदर आप a लिख दें, ठीक है। इट इज अ ब्लैंक स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर, और उसको आप कैसे लिख सकते हैं, दोनों कोट्स के दरमियान स्पेस के साथ कर दें तो वो उसको ब्लैंक स्पेस ले लेगा। अच्छा, इस वक्त हम एक थोड़ा सा काम और ये करते हैं कि थोड़ा सा कोड साथ साथ देख लेते हैं, ठीक है, so that we are kind of on the same lines। और यहाँ तक हमने जितना देखा है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ चीजें जो हैं वो आ जाएं तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। आप जब ये देख रहे हो, ये कर रहे हो, तो यू नीड टू फॉलो दीज एग्जांपल्स ऑल द टाइम। और उसमें ये होगा कि मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, हम उसको प्रैक्टिकली साथ साथ अगर वेरीफाई कर लें तो हम सब के लिए वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे दोबारा जो है वो डिस्कस करता हूँ कि
कोड के पर्सपेक्टिव से हमने क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर एग्जांपल 2.1, ठीक है। ये वही एग्जांपल है जो हमने देखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम रन करेंगे तो वी ऑलरेडी नो व्हाट शुड हैपन। तो आप इसको अगेन ये देखिए, ऊपर जो है इसने कमेंट्स दिए हुए हैं। विल इफ वी रन दिस प्रोग्राम विल नोटिस कि ये कमेंट्स नहीं आएंगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। एंड लेट्स रन द कोड। यहाँ पे आप देखें, इट्स गोइंग टू रन हियर एंड इन हियर इट्स बेसिकली, यहाँ पे एक फाइल बन गई है एग्जाम्पल 2.1 की। इसने रन किया, रन करके इसे 6 4 20 24 आंसर देके बात खत्म कर दी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम एग्जाम्पल 2.1, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम एग्जाम्पल 2.3 पे चले जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2.3 जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है 2.1 में, अगर मैं वापस जाऊं कि इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक ब्लॉक पूरा बना हुआ है, ठीक है। फिर एक आउटपुट की स्टेटमेंट का ब्लॉक है, फिर कुछ कंप्यूटेशन का ब्लॉक है, ठीक है। यू गॉट अगेन अ ब्लॉक ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट। नोटिस इस क्या इसमें हमने इक्वल टू को कितना खूबसूरती से इस्तेमाल किया, जो सॉरी स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग से कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया हुआ है। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस हियर, इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, इट हेल्प्स यू टू रीड थ्रू लाइंस, इट आइडेंटिफाइज ब्लॉक्स फॉर यू। बहुत सारी चीजें हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई यू गेट राइट इट विदाउट स्पेसेस, ठीक है, इक्वल टू के साथ। आई ऑलवेज प्रेफर कि इक्वल टू जो है ना ये सिंगल स्पेसेस के साथ हो। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, एंड दैट्स अनदर थिंग दैट आई हैव सीन इन अ फ्यू कोड्स। लोग जो है ना इक्वल टू को बिल्कुल नीचे, अगर दो स्टेटमेंट्स या चार स्टेटमेंट्स हैं इक्वल टू की, तो इसमें इक्वल टू को ना इकट्ठे इक्वल उसमें रख लेते हैं। दैट आल्सो लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये आपका अपना कोडिंग स्टाइल होगा, चीजें होंगी जिसको कि आई एम नॉट गोइंग टू यू नो फोर्स ऑन यू, और आई एम नॉट गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स। अगर आप वो फॉलो करें, ये करें, लेकिन कुछ फॉलो करना जरूरी है, जिस तरह के टैब्स देना। ईच ऑफ दीज लाइंस इज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अ टैब। जब भी ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है ना, इस ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रेसेस के अंदर, हर चीज देखें तो एक सिंगल टैब में। तो ये मुझे बता रही है कि इस लाइन 12 से लाइन 32 तक के दरमियान जितनी चीजें हैं वो इस लेवल पे हैं, वो लेवल मुझे बताती हैं। ठीक है, हम डिफरेंट लेवल, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लेवल्स यूज करते हैं, एंड आई टेल यू द रीजन, इट्स फॉर रीडेबिलिटी। लेकिन वी विल डिस्कस दैट व्हेन द टाइम कम्स। तो फिलहाल जो है इसमें और एग्जांपल्स तो नहीं है मेरे पास, बट वी कैन मे बी गो बैक एंड you know start working on the next thing. This was just to get you into a bit of a code, and let's move on and let's see what else we need to do. Okay, so now we are aware of characters. We've used a couple of things. ठीक है. Something that you need to know: different character data sets exist. For example, ASCII है. ASCII is basically short for American Standard Code for Information Interchange. ये लफ्ज मैं बहुत यूज कर रहा हूँ, लेकिन this is the real मैं acronym यूज कर रहा है. ASCII is an acronym. The real word is American Standard Code for Information Interchange. You'll probably not use this the whole or you don't need to remember it by heart. ASCII is good enough. लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है. ये बताता है कि बेसिकली जो हर एक वैल्यू है, 128 ASCII वैल्यूज हैं कोड सेट में, वो डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं. इससे नेगेटिव वालों को कुछ वैल्यू दी हुई है, एंड कैरेक्टर्स हैव अ प्री डिफाइंड ऑर्डरिंग. उसको ऑटोमेटिकली नंबर टू कैरेक्टर एंड कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन हो सकती हैं. ओके, एंड देन हम जो हैं वो दैट ऑल्सो मीन्स कि हम ASCII की बुनियाद पे हम कैरेक्टर्स को ऑर्डर कर सकते हैं. मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप सॉर्ट कर सकते हैं. आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, आप कह सकते हैं कि ASCII जो है वो डिक्टेट कर सकता है कि अगर आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हों, उनको बता सकता है कि
किसका स्टार्टिंग वर्ड जो है पहले या किसका बाद में, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो उसको जो है वो एसकी के थ्रू कैरेक्टर पे कैरेक्टर मैच एक्सक्यूज मी, हाँ जी, कैरेक्टर पे कैरेक्टर जो एसकी के थ्रू वो मैच कर सकता है। C++ जो है वो ऑफ कोर्स रियल नंबर्स को या फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन यूज करता है, और दिस इज हाउ इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप 75.924 स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी साइंटिफिक नोटेशन बनती है 7.5924 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 1, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन C++, अगर मैं कहूँ तो इट्स 7.592400 E1, ठीक है। इसी तरह आप इसी नोटेशन के अंदर कैपिटल ई रिप्रेजेंट्स 10 रेज़ टू पावर समथिंग, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, देन इफ वी गो ऑन टू फ्लोट, float is basically any real number which can have a range which can occupy 4 bytes, और उसमें जो range है वो -3.4 e to the power plus 38 to 3.4 e to the power plus 38 है। और double on the other hand is again a real number, लेकिन ये 8 bytes, takes double the size of the float, और उसकी range जो है again you can see is basically -1.7 e to the power 308 to 1.7 e to the power plus 308, और minimum and maximum values of data types are system dependent of course, ठीक है। तो that is about I think floating data types, नहीं अच्छा और भी है जो फ्लोट के जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं डेसिमल के, जाहिर है आप कहते हैं कितने डेसिमल तक स्टोर कर सकते हैं, तो फ्लोट टिपिकली 6 और 7 डेसिमल तक स्टोर करता है, जबकि डबल में जो है वही अमाउंट है, ऑलमोस्ट डबल दैट अमाउंट, इसलिए हम इसको डबल कहते हैं। इट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ अबाउट 15 डेसिमल पॉइंट्स। अच्छा, प्रिसीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ओवरफ्लो कर जाएंगे, अगर आप जगह से एक्सीड कर जाएंगे, तो देन यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम विद प्रिसीजन, ठीक है। जितनी प्रिसीजन आपको चाहिए, दैट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यू वांट टू स्टोर। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक हम स्टोर करना चाहते हैं, दैट्स अ सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट। तो फ्लोट वैल्यूज को हम टिपिकली सिंगल प्रिसीजन कहते हैं, और डबल को हम डबल प्रिसीजन कहते हैं। Answer is simple. Single precision means maybe 6 or 7 characters, and double precision means 15 characters. तो ये इसका सिंपल सा फंडा है। Okay, to declare any variable we must specify its data type. Of course इस हम देख चुके हैं। For example उसका जो typical syntax है, that is data type identifier। आपने डेटा टाइप पहले बतानी है, उसके बाद आइडेंटिफायर बताना है, उसके बाद एक सेमीकोलन लगाना है। फॉर एग्जांपल we can say int counter, counter है, that's the name, int is the data type, interest rate is the name, double is the data type, grade is the name, character is its data type। अच्छा, इसके बाद एक अगर आप देखें तो जाहिर है कि इसमें आप वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। द मेन थिंग इज, अगर मैं int counter लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज द वैल्यू ऑफ int counter? The answer to that is कि जो उसकी वैल्यू है, that is going to be, let's say 0 हो सकती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर रियली। int counter आपने लिखा, आपने उसको प्रिंट कराया, हो सकता है कि कंपाइलर कहे कि दिस इज एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। वार्निंग जरूर देगा, हर कंपाइलर वार्निंग तो मिनिमम देता है, कुछ कंपाइलर्स को एरर भी दे देते हैं, ठीक है। दे डोंट लेट यू कंपाइल इट, उसको सिंटैक्स एरर या अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल कह के उसको एक एरर दे देगा। कुछ कंपाइलर्स को एक्चुअली रन करेंगे, और रन करके उसके अंदर जो एक रैंडम वैल्यू पड़ी होगी, जो भी पहले से पड़ी हुई है, उसको प्रिंट कर देंगे या उसको 0 प्रिंट कर देंगे। इन जावा आई थिंक इट बाय डिफॉल्ट प्रिंट्स इट टू 0। इन C++ it gives you an error in most compilers, let's say, not in all but in most compilers। तो एक तरीका तो ये है इसको कि आप डिक्लेरेशन के साथ में ही असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर लें, यानी int counter is equal to 5, डबल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0.05। दूसरा तरीका ये कि यहाँ पे ना करें, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप सिंपली एक असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर लें। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या करती है, वेरिएबल का नाम लेफ्ट हैंड साइड पे रखती है, राइट साइड पे एक्सप्रेशन दे देती है। दैट एक्सप्रेशन कैन बी अ सिंगल वैल्यू इटसेल्फ और बेसिकली अ
combination of multiple values. अच्छा, that brings us to our next topic, which is arithmetic operators, operator precedence and expressions. What is an arithmetic operator? An arithmetic operator in C++, अगर हम सिंपल बात करें तो arithmetic operator ये है कि जो हम different mathematical operations के लिए हम जो basic जो operators use करते हैं उसमें plus है, minus है, multiply है, divide है, remainder है and so on. तो ये जो 5 हैं basically ये 5 के 5 ऑपरेटर्स जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं. C++ में भी बिल्कुल उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास सिंबल्स मौजूद हैं. एडिशन के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का यूज करते हैं, डिवीजन के लिए बैकस्लैश है, और जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ परसेंट का साइन जो है ये रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल किया, मॉडुलस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नोटिस दिस थिंग कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है ये नंबर्स इंटीजर्स फ्लोट सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है. अलबत्ता जो मॉड का साइन है या रिमाइंडर का साइन है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के साथ, इंटीग्रल के साथ यूज हो सकता है. इंटीग्रल डेटा टाइप्स में कैरेक्टर भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, सो उनके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये फ्लोट्स के साथ इस्तेमाल नहीं होगा. ओके, अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जब आप इसको रन करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आप लेट्स से वी यूज अ डिवाइड साइन एंड आफ्टर डिवीजन अगर आप दो इंटीजर्स के दरमियान डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट इज आल्सो एन इंटीजर एंड दैट इंटीजर is basically rounded is basically truncated. Truncate का मतलब ये है कि वो जो भी lower number है ना, like let's try dividing 8 with 3, 8 divided by 3, the answer is 2.66 something. अगर उसको round किया जाए तो to the nearest integer that would come out to be 3, लेकिन जब हम इसको run करते हैं तो the answer is not 3, it is 2, क्योंकि कर ये रहा है कि regardless of even if it is 2.9999999999 वो उसका आंसर 3 नहीं देगा, वो उसका आंसर ट्रंकेट करके तो 2 पे लेके जाएगा. सो द मेन आइडिया हियर इज कि आपने जो है वो इंटीजर डिवीजन को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है. ठीक है, व्हेन यू डिवाइड टू इंटीजर्स इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अनदर इंटीजर. अगर आपको उसमें फ्लोट चाहिए या डेसिमल्स चाहिए तो आप डेसिमल्स में चाहे आप स्टोर करें लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे आपके पास डेसिमल्स हो, वो डेसिमल्स में आंसर नहीं आएगा. एंड हाउ यू कैन डू दैट, विल डू दैट लेटर. या तो ये है कि ऑफ कोर्स एक साइड पे आप फ्लोट पहले ही फ्लोट से डिवाइड करें. अगर एक भी फ्लोट हुआ या न्यूमरेटर में या डिवाइडर में तो आंसर जो है वो फ्लोट में आएगा और वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो किया जा सकता है. ठीक है, विल सी दैट इन एग्जांपल्स मे बी. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पे. व्हाट आर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस? दे कंटेन वैल्यूज इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ कोर्स. ठीक है, उनमें कुछ ऑपरेंड्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं. ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वो नंबर हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर्स काम करेंगे. ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंगल ऑपरेंड भी हो सकते हैं और वो मल्टीपल या बाइनरी वो भी हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि उनको हो सकता है कि सिर्फ एक यूनरी हो. ठीक है, अच्छा, ऑफ कोर्स ऑर्डर बॉड मास इज ऑलवेज फॉलोड. बॉड मास का मतलब ये है कि हम हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करेंगे. ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करने के बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड का साइन जो सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस पे हैं उनको हम पहले इवैल्यूएट करेंगे. उसके बाद जब ये सारे खत्म हो जाएं तो उसके बाद प्लस और माइनस को इवैल्यूएट किया जाएगा. और फाइनली जब बेसिकली सारे सेम लेवल पे आ जाएं तो फिर वो लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करेंगे. सो फॉर एग्जांपल 3 into 7 minus 6 plus 2 into 5 divided by 4 plus 6 का मतलब ये है कि सबसे पहले वो अगर देखा जाए तो 3 into 7 परफॉर्म होगा. ठीक है, 2 into 5 divided by 4 परफॉर्म होगा और उसके बाद जो एडिशन और बाकी सारा है वो परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है, लेफ्ट टू राइट बॉड मास रूल. इंटीग्रल एक्सप्रेशन जो है वो ये हैं कि बेसिकली जितने ऑपरेंड्स हैं अगर वो सारे के सारे इंटीजर्स हों तो उनका आंसर भी इंटीजर आएगा. इसका मैंने आपको बताया था. ऑन द अदर हैंड अगर एक भी फ्लोट हो, ठीक है, तो उसमें फ्लोट ही रिजल्ट के तौर पे निकलेगा. अगर आपका बेसिकली जो है वो
एक ऑपरेशन के बीच में जो दो डिजिट्स यूज हो रहे हैं उनमें से एक फ्लोट है और एक इंटीजर है तो भी आंसर फ्लोट निकलेगा। अगर सारे के सारे फ्लोट हैं तो आंसर बाय डिफॉल्ट फ्लोट ही आएगा। मिक्स्ड में टिपिकली क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऑपरेंड्स हो सकते हैं। इट कैन कंटेन इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग टाइप्स, फॉर एग्जांपल 2 + 3.5, 6 / 4 + 3.9। यहाँ पे आंसर डिपेंड करेगा, ठीक है। और डिपेंड किस चीज पे करेगा, इफ ऑपरेटर हैज सेम टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स, मसलन हमने कहा कि दोनों तरफ अगर आप दो नंबर को प्लस करें, दोनों के दोनों फ्लोट्स ही हैं, तो आंसर भी उसी डेटा टाइप का आएगा। अगर मिक्स्ड है तो मिक्स्ड में बेसिकली इंटीजर जो है वो हमेशा इट गिव्स वेज टू फ्लोटिंग डेटा टाइप। उसके बाद वो ऑपरेटर जो है वो इवेल्युएट करता है, काम करता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो भी फ्लोटिंग में ही आता है। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर आपका एक ऑपरेंड जो है वो फ्लोट है तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल रिजल्ट आपका फ्लोट में आ जाएगा। और जाहिर है कि जो एक्सप्रेशन बनता है वो प्रेसिडेंस रूल्स के मुताबिक बॉड मास को फॉलो करते हुए ही इवेल्युएट होगा। अच्छा, एक चीज है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बेसिकली सेइंग के एक इम्प्लिसिट है और एक कास्ट ऑपरेटर के थ्रू है। इम्प्लिसिट इस सेंस में है, आप कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये इम्प्लिसिटली एक काम, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर इंटीजर और फ्लोट इकट्ठे हो जाएं, आप कहते हैं कि 2.0 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आप स्टोर कराना चाह रहे हैं एक फ्लोट के अंदर, तो 2.0 डिवाइडेड बाय 4 द आंसर इज गोइंग टू बी 0.5। अच्छा, लेकिन 2 डिवाइड बाय 4 हो तो आंसर इज गोइंग टू बी 0। तो जहां ये 2.0 डिवाइड बाय 4 हुआ है, देयर इज एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और कोअर्जन। जहां पे उसने किया क्या है, उसने जो 2 था दैट वाज अ फ्लोट, जो 4 था वो इंटीजर था, लेकिन उसने उस 4 को पहले कन्वर्ट किया है इम्प्लिसिटली विदाउट यू इंटरवीनिंग और डूइंग एनीथिंग इन द कोड। उसने 4 को कन्वर्ट किया है फ्लोट के अंदर, और फ्लोट में कन्वर्ट करके फिर उसने उसको रन किया है, और रन करके जो रिजल्ट है वो उसने स्टोर कर लिया है। तो दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। उसने इम्प्लिसिट कोअर्जन की हुई है, इम्प्लिसिटली उसने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड वी कुड डू इट एक्सप्लिसिटली एज वेल। उसके लिए हमें कास्ट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक कास्ट, जिस नाम में आपने बदलना है, फॉर एग्जांपल स्टैटिक कास्ट फ्लोट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कास्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि अंदर हर चीज को किस चीज में कास्ट कर दो, या रिजल्ट को अल्टीमेटली कास्ट इनटू एन इंटीजर, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। लेट्स जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल क्विकली। ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। स्टैटिक कास्ट है, इंट है। हम 7.9 को अगर हम स्टैटिक कास्ट इंट में करें तो वो उसको 7 में कन्वर्ट कर देगा, एक इंटीजर में बना देगा। इसी तरह 3.3 को 3 बना देगा। 25 को अगर आप डबल करेंगे तो 25.0 कर देगा, ठीक है। 5.5 + 3 को वैल्यूएट करेंगे और उसको स्टैटिक कास्ट डबल करेंगे तो 8.0 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, पहले उसको वैल्यूएट करेगा 5 + 3 को, दैट बिकम 8, और 8 के बाद देन वी कैन गो टू 8.0। अच्छा, इसी तरह 15 है डिवाइड बाय 2 है, तो पहले उसने 15 को कास्ट किया डबल में, ठीक है। 15.0 डिवाइड बाय 2, और उसके 15.0 डिवाइड बाय 2 जो आंसर है जो भी है उसको 7.5 उसका आंसर देके that's what it's going to give out। इसी तरह आप अगर इस तरह से करें तो बेसिकली इट फर्स्ट डिवाइड 15 by 2, 15 divided by 2 is 7, ठीक है। and then it casts this 7 to double, then it becomes 7.0। अच्छा, 15 divided by 2 यहाँ पे 7 दे रहा है, यहाँ पे क्यों? क्योंकि बेसिकली जब जहाँ कास्टिंग पहले हुई है वहां पहले ही वो 15.0 बन चुका हुआ है, क्योंकि 15.0 बन चुका हुआ है तो वहां पे जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कास्ट करेगा 2 को डेसिमल में और उसको उस तरह से इस्तेमाल करेगा एज शोन इन द एग्जांपल ओवर हियर। अच्छा, similarly there is this other example of static cast int 7.8 plus static cast double 15 divided by 2। तो पहले वो it will start off internally I think from dividing 15 converting 15 to 15.0। 15.0 divided by 2 gives you 7.5, 7.5 plus 7.8 gives you 15.3। 15.3 को डबल में ही कास्ट करना है, 15.3 को उसने इंट में कास्ट करना है, तो 15.3 का इंट जो 15 बनता है, सो आंसर इज गोइंग टू बी 15।
इसी तरह अगर नीचे जाएं तो नीचे स्लाइटली डिफरेंट, इट्स बेसिकली सेज के 15 डिवाइड बाय 2 सबसे पहले परफॉर्म होगा, द आंसर इज 7. 7 को आपने ऐड किया 7.8 के अंदर, दैट गिव्स यू 7 plus 7.8 is 14.8, राइट. 14.8 को जब आप इंट में कास्ट करेंगे तो वो 14 हो जाएगा. अच्छा, नोटिस दिस थिंग कि राउंड नहीं करता. एंड में कास्ट करने का मतलब नहीं है कि उसको राउंड करें. इनका मतलब ये है कि बेसिकली ट्रंकेट कर दें, जो डेसिमल के बाद उसको सिंपली डिस्कार्ड कर दें. अच्छा, then there is another very important data type which is called string, और string is really interesting and important. तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम वो स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 6 ऑफ द कोर्स. अभी तक हमने जो कवर किया है, हमने पिछले टॉपिक्स को थोड़ा सा इसमें कवर किया है, डाटा टाइप्स को थोड़ा सा इन डिटेल देखा है, और we'll basically be we have talked a bit about arithmetic operations, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रेसिडेंस क्या होती है. अगेन these are things that जो कि आपको एग्जांपल से समझ आएंगी. And if you want to see the example right away, I think before we finish this lecture, I'll just show you the things, and then we can kind of go to the other part. अभी तक जो आप कर चुके हुए हैं, you're probably I think extremely comfortable with doing a couple of things. मैं just for example, these are some of the statements. अगर हम इसको run कर लें, this is one example that illustrates how integral expressions are evaluated. So for example, you want to evaluate 2 plus 5, and the answer is, 2 plus 5, and let's see what comes out. 13 plus 89, 34 minus s. तो ये सिंपल मैथमेटिक्स के हैं. अगर आप जो आपने पहले लैब में भी शायद करके देखा है, इट्स काइंड ऑफ ऑन द सिमिलर नोट. और ये देखिए इसमें सारे जो आंसर्स आ रहे हैं, दैट इज एक्जेक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड. 2 plus 5 का आंसर 7 है, 13 plus 89 का आंसर 102 है, 34 minus 20 का आंसर 14 है. तो ये सारे के सारे आंसर्स आपको साथ साथ बता रहा है. Why is it telling us the answers? You need to understand these things in quotes are basically strings. ये fixed हैं, ये ऐसे ही print होने हैं. Then we say कि 2 plus 5 जो है ना, इसको print करो. So this is where the program intervenes. यहाँ पे कहता है एक ऑपरेटर है प्लस का, मैं उस प्लस के ऑपरेटर को लूं, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लूं, राइट हैंड साइड की वैल्यू लूं, उन दोनों के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करूं. 2 and 5 are added together to give me 7, and then 7 is the value that needs to be displayed here. ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो it is showing me int 7. ठीक है. अच्छा, that means 2 plus 5 is equal to 7 इवेल्युएट होता है, और वो 7 के बाद नेक्स्ट लाइन में आगे चला है 13 plus 89. 13 plus 89 is 102. 102 इवेल्युएट होता है, और 102 इवेल्युएट होकर यहाँ पे अगर मैं प्लस पे जाऊं तो आपको 102 नजर आएगा. ठीक है, तो here it's 13. ठीक है, ये लेकिन साइड आपको पूरी की पूरी जो है वो, this is 89, this is 13, and the plus gives me 102. ठीक है. अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आंसर 14 आएगा. अगेन यू कैन सी कि वो साथ साथ इवेल्युएट कर रहा है. इट इज गोइंग टू इवेल्युएट दिस फर्स्ट एंड देन प्रिंट. तो प्रिंट में भी आपने याद रखना है कि जब सी आउट करते हैं तो पहले वो स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो इंटीजर वैल्यूज लेता है, या जो भी आपके एक्सप्रेशन को लेता है, उसको इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट करके वो प्रिंट करता है. ठीक है, तो that is what's going on, and that is how you want to see. 4% 6 का मतलब ये है कि 4 को अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है. The remainder for this of course is 4, और again you can see के वो उसको evaluate करे 34. Remainder 5 is 4 again, ऊपर भी आपको 4 ही मिलेगा. ठीक है, and that's what you're getting. तो that's example 2.3 I guess. Then we go to 2.4, and 2.4 is slightly different. यहाँ पे जो important चीज है वो ये है कि आपने इनपुट और आउटपुट दोनों देखनी है, and this is what's going on. मैं इसको बल्कि 2.4 स्टैंडर्ड से लेता हूँ. Let's not jump the gun too much. तो आपके पास यहाँ पे there is int inches. Again यहाँ पे आप कमेंट्स देख सकते हैं, इसे कमेंटिंग की हुई है इस कोड में properly. You've got inches. यहाँ पे इसमें उसने डिक्लेयर किया वेरिएबल को
कि ये इंचेस इसका नाम है और इंट स्टोर करेगा। देन यू से इंच इज इक्वल टू 100 उसको इनिशियलाइज किया इनिशियल वैल्यू को। देन यू से सी आउट इंचेस, ठीक है, इंच इज इक्वल टू एक लाइन आउटपुट करे इंच इज इक्वल टू दिस, एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन सेपरेट लाइन इट सेज, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे से कमेंट भी इस लाइन को भी कमेंट आउट किया हुआ है, तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्योंकि ऑपरेटर यूज कर रहा है इसलिए यहाँ पे इस तरह से यूज कर रहा है। एंड देन इट गोज ऑन एंड सेज दैट सी आउट इंचेस डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे अगर हम सिंपली इंचेस डिवाइड बाय 12 करें क्योंकि इंट है, तो लेट्स से कि इंचेस 100 थे, 100 डिवाइड बाय 12 इज बेसिकली 8, तो आंसर आपका यहाँ पे 8 आएगा। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा। सो लेट्स जस्ट रन दिस कोड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये आपको अगेन आंसर 8 दिखाएगा। द रीजन इट इज 8 इज बिकॉज ये आप इंटीजर में स्टोर करें, इंटीजर में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 इसका आंसर आ गया, तो 8 फीट, एंड दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट, 8 फीट एंड 4 इंचेस, प्रिसाइजली 8 फीट एंड 4 इंचेस, ठीक है। अच्छा, then we can just quickly maybe or let's do it for the next time। ये आपको again examples हैं, ये सारी examples आपको तुरंत करके देख सकते हैं। That's it from me for this lecture। Lecture 7 में we'll continue on from the same point। See you in that lecture। Thank you। Allah Hafiz।